Good morning, dear students. Myself, Dr. Roli Rai from the Department of Education, BBD University. I just wanted to first of all introduce you to myself and the paper that I'll be taking. So the name of the paper is Understanding of Discipline. And in this paper, there are certain, the units that I'll be taking is Unit 2 and Unit 3. In this particular class, I'll be beginning with the Unit 2, and I'm sure you're going to find it new, find it different. See, the times are different. We have all shifted to online teaching for the purpose of many various reasons, as you all well are aware of. लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि हमारा जो क्लास रहेगा वो bilingual रहेगा, for the convenience of all the students, whether of English medium or Hindi medium. And the syllabus that we'll be dealing with are related to different aspects of curriculum, relating to their meaning, their aim, nature, types of curriculum, and also the basis of curriculum, the approaches of curriculum, as well as what we call as the differences between syllabus, course of study, and curriculum. So I just hope that you are going to enjoy learning, because learning and teaching process is said to be complete only when the process is a two-way process. I know these are trying times, and it must be as new to you as it is to us. And but I'm sure in time to come, near time to come, we'll be seeing each other face to face and enjoy the classes. So I welcome you all from the Department of Education, and let us first begin this lesson on curriculum, what it means, and aim of curriculum. Now, as you are all, I'm sure when you have gone to schools and colleges, you have found that what exactly do we mean by curriculum? Now, curriculum, as you see, ये पाठचर्या जो शब्द है, ये केवल एक सिलेबस या कोर्स या एक स्टडी से कंडक्ट नहीं करता या उससे अर्थ नहीं मानता, वह बहुत सारी चीजों को, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनको अलग अलग भिन्न प्रकार से डेफिनेशंस के दौरान अलग अलग फिलोसोफर्स ने, अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने उनको मीनिंग दिया है. और वॉल्टर ने कहा है कि करिकुलम में बी डिफाइंड एज ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट pupils have while under the direction of the school. It includes classroom and extracurricular activities, work as well as play. सो एक्चुअली क्या है कि करिकुलम को इस प्रकार से लिया गया है कि जो कार्य क्लास में हो रहा है, स्कूल में, विद्यालय में हो रहा है, उसके अतिरिक्त जो कुछ वो विद्यालय के अलावा सीखते हैं, एक्स्ट्रा या को करिकुलर एक्टिविटीज के दौरान सीखते हैं, उसको भी करिकुलम के नाम से लिया गया है. Now, so has Cunningham taken us the definition as curriculum is a tool in the hands of the artist, uh, that is the teacher that he means, and to mold his material, that is the pupil, according to his ideas in his studio. Now, आने वाली क्लासेस में हम और भी ज्यादा ड्वेल करेंगे जिस पर हम डेफिनेशन और मीनिंग्स और जिस शब्द से लिया गया है, और कनिंघम ने जो इस बात को लिया है उसमें स्कूल को एक स्टूडियो की भांति लिया है. स्कूल ही सेड मीन्स लाइक अ स्टूडियो, और स्टूडियो के अंदर क्या है, वहां पे मटेरियल है, मटेरियल क्या है, प्यूपल है, और वो जो उस स्टूडियो का जो आर्टिस्ट है वो एक टीचर है, और वो अपने मटेरियल को मोल्ड करता है अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज, और उसके आइडियाज जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो इस डेफिनेशन के अंतर्गत आपको क्लियर ये कंसेप्ट समझ में आता जा रहा होगा कि करिकुलम को किस प्रकार से मोल्ड करती है टीचर. सो इन एवरी क्लास ऑफ आवर्स the important aspect is to study about it, and also to study the role of the teacher, since you are all being trained in this course of BA, and you have to understand the concept or the meaning regarding curriculum. Now, over here, when we talk about different aspects of, that is aims of curriculum, you will find कि जो aims of curriculum के तहत बोला गया है वो है सबसे पहली चीज
कि एम्स, एम्स में कैरेक्टर। नाउ कैरेक्टर से क्या मतलब है? एक कैरेक्टर मीन्स टू ले फॉरवर्ड, you can say, or any kind of foundation for rich, for useful and moral life. And they talk about so that the learner may work for social welfare. तो इसका कैरेक्टर बेसिकली ये है कि जो फाउंडेशन किसी यूजफुल करिकुलम जब तक यूजफुल नहीं है, उसका उपयोगिता नहीं है, तब तक वो डिफीट हो जाता है. So they have talked about national heritage also. National heritage here means to make children capable of understanding any kind of national heritage and to have faith in it, and to come along with to evoke feelings for the honor of an individual. It simply means जो national heritage है, जो देश की जो कहना चाहिए, जो एक rich cultural heritage की हम बात करते हैं, उसको संभाल के रखना, ये करिकुलम का एक उद्देश्य माना गया है. उसके बाद जो हेल्थ की बात करी गई है, फिजिकल फिटनेस यानी कि अप्रोप्रिएट करना चाहिए मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हर प्रकार के हेल्थ की. सी हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज आल्सो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड. तो कितनी वो फिटनेस है, कितना व्यक्ति अपने आप को कहना चाहिए हेल्दी फील कर रहा है, फिट फील कर रहा है, स्वस्थ फील कर रहा है, उसके लिए आवश्यक है कि जो करिकुलम हो वो इस प्रकार का बना हो कि हेल्थ मेंटेन हो. Then they have talked about clear thinking and observation. This means to develop the consciousness power based on appropriate hypothesis so that they may differentiate between right from wrong, from truth and untruth. तो इन जब विषयों की हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि क्लियर या क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग या ऑब्जर्व करना, देखना, तो करिकुलम ये सभी चीजों को सामने लाता है. देन टू टॉक अबाउट नॉलेज एंड स्किल. Knowledge and skill से मतलब है to develop knowledge and various skills in children according to their ability. हर बच्चा अपने आप में भिन्न है और ये भिन्नता जो है बच्चों को कैसे एक दूसरे से जोड़ती है. तो ये एस्थेटिक फीलिंग एंड एक्सप्रेशन की बात करी है. दिस मीन्स टू डेवलप एस्थेटिक एप्रिसिएशन इन चिल्ड्रन and also for to develop that creative expression, that creativity and imagination in them. वो जो expression हो वो creativity का. Then they have talked about social and economic relations. That simply means कि जो बच्चों में develop करने की जरूरत है वो appropriate social and economic relation है, so that उनकी जो life वो जो lead करेंगे that will be related to family या school से या society से, वो बहुत ही appropriate behavior हो जो उचित माना जाएगा जिसे, और उसमें वो vocational skills को भी develop करें. और next point है citizenship की. Citizenship here means to have faith and feeling of pride and also to have respectful Indian republic में जो एक आदर्श छात्र, एक देशभक्त होने के साथ साथ एक राष्ट्र में जो सिटीजनशिप की बात करी गई, एक पेट्रियोटिज्म के साथ में, ये सारी चीजें करिकुलम के माध्यम से डेवलप करने की बात करी है. Now we come to the nature of curriculum. जो nature है वो किस प्रकार का nature होता है. That nature means it is relating to subject matter. Now subject matter कैसा होता है? It is basically relating to different aspects of जो भी content है, वो facts हैं, जो arena है, जो endeavor है, that should be relating to different aspects, जो कि बच्चों की उपयोगिता को सामने ला सकते हैं. Now they have talked about the instructional plan, and instructional plan means कि जो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्लान आउट करते हैं, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है शुरुआती दौर पे, वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चों को एक सीक्वेंस, एक एक्टिविटीज का सही प्रोफॉर्मा, सही तरीके से प्लान आउट करने के लिए उनको हेल्प करे. और जो उद्देश्य हो वो कोई एक सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन अपने पर्पस का देने के अलावा बहुत क्लैरिटी के साथ में कि क्या उद्देश्य उनका है. उसके बाद में रैशनल, क्या रैशनल होता है, क्या उसका लॉजिकल रीजनिंग के साथ में क्या उद्देश्य है, क्यों वो उसको करिकुलम का ये इंपॉर्टेंस रखता है. Then we talk about goals and objectives. Regarding goals and objectives, ये कह सकते हैं कि हर करिकुलम, कोई भी चीज की जाती है उसका कोई एक उद्देश्य होता है, एक गोल होता है कि क्यों किया जा रहा है. So they have talked about the goal being the list of learning outcomes as expected from participants in the curriculum.
The section, you can say, will also include discussions of the curriculum which supports national, state, district and local level. ये एक इसकी अहम चीज है. उसके बाद में आती है बात ऑडियंस एंड प्री रिक्विजिट्स. करिकुलम किसके लिए बन रहा है, कौन से वो बच्चे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, कौन सी उनकी नीड्स हैं, क्या उनकी एबिलिटीज हैं, इन चीजों को ध्यान में रख के लर्नर हमारा कौन है, करिकुलम को प्रायर नॉलेज के साथ में लिंक करते हुए उनकी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए. उनके प्री रिक्विजिट्स अकॉर्डिंगली करिकुलम का होना चाहिए. Then we do material. You can say the material is necessary for successful teaching of the curriculum and it includes the web pages. जैसे कि आपका जो मटेरियल है उसमें वेबसाइट्स का क्या दिया होगा, उसमें कौन सा मटेरियल किस किताब से लिया गया है, एवरीथिंग इज रिलेटेड and it is set up for the students to study. बच्चों के लिए होना चाहिए. Let me come to plans for assessment and evaluation. Plans for assessment and evaluation से मतलब ये है कि करिकुलम केवल पढ़ाने के लिए नहीं है, उसका क्या मूल्यांकन होगा, किस प्रकार से उसको हम असेस करेंगे, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है. तो evaluation is also an important aspect. Then we come to types of curriculum. Here we are going to study about various tasks. कि जो भी टाइप्स क्या होते हैं. तो पहली चीज आती है टास्क सेंटर्ड. अब ये टास्क सेंटर्ड क्या टास्क होते हैं, that means that is related to activity centered or curriculum. ये जो डिफरेंट अलग अलग तरीके के आपके पास में आते हैं, that is relating to subject centered या टीचर सेंटर्ड. ये जो सब्जेक्ट सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड करिकुलम है ये इम्पोर्टेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इट फॉलोज अ हर्बाशियन अप्रोच. और ये टाइप ऑफ करिकुलम जो है इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट individual differences. It does not it does not also take into the psychological in nature. देखो क्या होता है बच्चों कि जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट सेंटर या टीचर सेंटर्ड करिकुलम की, तो यू विल रियलाइज कि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड अपने आप में ही ये कह रहा है कि टीचर पे बेस्ड है, इट इज नॉट बीइंग बेस्ड ऑन द चाइल्ड. और जब तक वो चाइल्ड पर बेस्ड नहीं होगा तो नेचुरली इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इट विल बी. बट इसके अपने अलग फायदे हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द करिकुलम व्हिच इज बेस्ड ऑन, you can say, relating to different student centered or child centered, it will have different facilities. Now ये जो है ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड होता है. जो सब्जेक्ट है उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा देता है या टीचर को अहमियत ज्यादा देता है. और टीचर में पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ करिकुलम डिसीजन मेकिंग रूल्स. और ये जो है इस पे इम्पोर्टेंट जो देता है वो उसका पर्पस यही है कि इट शुड आल्सो बी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, जिसका रिजल्ट दिखाई दे, जिसका पर्पस सर्व हो सके. एंड नेचुरली इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एंड सब्जेक्ट एज वेल. तो इसमें हम जब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टीचर सेंटर्ड करिकुलम, तो कभी कभी कई जगहों पे आप पाएंगे कि सब्जेक्ट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड को भी उन्होंने अलग कर दिया. टीचर सेंटर्ड करिकुलम इज TCC, but at times it has been taken variantly from subject centered and at times it has been taken in relation to subject centered curriculum. और इसके तहत जब हम डिस्कस करेंगे you will find that what is the importance of. Now, teacher-centered curriculum is basically relating to different aspects of, you can say, points when we are pointing out to the fact that the teacher-centered curriculum embraces an orientation towards education as a venue for socializing students. जब तक टीचर अपनी की इम्पोर्टेंस या टीचर के सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को ज्यादा दिया जाएगा, अहमियत दी जाएगी, तो उसमें करिकुलम विल नॉट बी बेस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स, बट इट विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट मैटर. तो जो कंटेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये करिकुलम बनाया जाता है. और यहाँ पे टीचर्स पार्टिसिपेट करती हैं in a variety of curriculum activities at classroom level, and these are very core of their daily, you can say, of their daily teaching tasks, and they include activities for the selection of specific objectives, specific content matter, and for also selecting of teaching approaches. तो ये जो इसमें इसके तहत जो बोला गया है कि इन्होंने टीचर्स में पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ करिकुलम डिसीजन मेकिंग रोल्स फॉर द स्कूल लेवल, इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं
तो है इम्प्लीमेंटर्स। अब इम्प्लीमेंटर्स क्या है? इम्प्लीमेंटर्स जैसे कि रिसीवर्स होते हैं, एंड टीचर्स रोल इन इज टू अप्लाई टू द यू कैन से डेवलप्ड curriculum, and in this role the teacher has a minimum responsibility and involvement in the curriculum development phase of curriculum process, though he has a significant role in the application process. This simply means कि उनकी जो liability है वो भले ही कम हो जाती है, but जो उनका purpose है वो उसका उद्देश्य कंटेंट मैटर को बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है. सो दिस इज द बेसिकली रिलेटिंग टू द इम्प्लीमेंटर्स. और अडेप्टर्स क्या होते हैं? इसमें ये भिन्न प्रकार है कि इसमें टीचर्स कौन सा रोल प्ले करती हैं. तो द पॉइंट इज ओवर हियर द अडेप्टर्स, एज एन अडेप्टर द रोल ऑफ द टीचर इज जस्ट the same as implementer, is nearly the same, you can say, with a slight difference. This is somewhat conceptual term which indicates that the teacher must become ready to accept the curriculum in order to implement. क्या होता है कि जहां तक when we talk about implementers, they are just to implement, जैसे कि शब्द बताता है, टीचर को implement कराना है, मगर उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी नहीं रहती है. लेकिन जहां अडेप्टर्स है उसको बच्चों को अडेप्ट भी कराना है, यहाँ पे जिम्मेदारी अधिक हो जाती है regarding the teachers. So this is the second thing. Then we have developers, and now developers का क्या अर्थ होता है? As a developer, the teacher's role, what does it become? Is to take part in the curriculum development process. सारे जो उसकी जो प्रक्रिया है जिसमें वो development process will be occurring, उसमें उनका रोल बढ़ जाता है. Then we talk about the researchers. Curriculum is a dynamic process, and keeping in view these characteristics, there is a need to conduct researches in order to bring about desirable changes. जब researchers की बात करते हैं तो teachers researching का process begin करते हैं. They begin with the process of researchers, and यहाँ पे उनको क्या करना होता है? उनको reevaluate करना होता है, उनको review करना होता है, and they also have to change the curriculum accordingly. और ये सारी चीजें एस्पेक्ट्स उसके प्रोसेस में लगती हैं. देन वी कम टू द मेरिट्स ऑफ टीचर कंटेंट करिकुलम. टीचर्स जो होते हैं उनमें दे आर द इजी टू अचीव, दैट इज अ डिजायर्ड गोल. इनके लिए ये ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा आसान होता है कि मेरिट्स में के अंतर्गत कि व्हेन वी टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ टीचर सेंटर्ड करिकुलम, इट इज वेरी इजी टू अचीव डिजायर्ड गोल्स. क्योंकि टीचर के लिए एक सेट गोल होता है, एक पैटर्न होता है, उनके पास सिलेबस फिक्स्ड होता है और उसी को वो अचीव कराने में सहायता देते हैं. Then we come to subject matter which becomes you can say साइकोलॉजिकली साउंड. और साइकोलॉजिकली साउंड का यहाँ पे मतलब है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो इट इज वेरी मच इन रिलेशन टू द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड. और जब हम कंटेंट की बात करते हैं इट इज लॉजिकली अरेंज, क्योंकि नेचुरली जो टीचर ने अरेंज किया है वो सब्जेक्ट को एक दूसरे से लिंक करते हुए सीक्वेंस में अरेंज किया है. इररिलेवेंट मैटर जो होता है उसको अवॉइड करते हैं. इट इज नॉट कि अगर बच्चे को पसंद है तो बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड है तो वो इररिलेवेंट मैटर को भी ले ले, ऐसा नहीं है. सो इररिलेवेंट मैटर इज अवॉइडेड एंड द टीचर फील्स कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट ऑल्सो. तो जब टीचर कंफर्टेबल फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो उसमें नेचुरली दे विल फाइंड मोर स्पेस, more activity, more interest in making the students, teaching the students. Then democracy is encouraged. Now democracy is encouraged means कि जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसमें सबके लिए एक समान है, सबके लिए एक सार है, और naturally it becomes more of profitable in the relation to students. Then there is you can say cooperation which is developed. जो cooperation level है बच्चों के लिए वो डेवलप किया जा सकता है टीचर सेंटर्ड करिकुलम में. देन सोसाइटी या कम्युनिटी इज आल्सो इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि टीचर क्या करती है कि जो कुछ मैटर दे रही है दैट इज रिलेटिंग टू द सोसाइटी, कम्युनिटी, जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, जो सबके हित का है, वो लिया जाता है. कोई ऐसा करिकुलम नहीं लिया जाता कि केवल 1-to-1 बेसिस पे लिया जा रहा हो. Then the last point being that there is no objection raised by the teacher in connection with the availability of such sources and resources. Now we come to the limitations. ये teacher centered curriculum की limitations क्या हैं? Now hindrance is there due to rigid administration.
क्योंकि बहुत रिजिड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो जो प्लानिंग है, जो मैनेजमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं रोकथाम लग जाती है, उतना फ्रीली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. Then next is the difficulty to maintain common standards. एक प्रकार का common standard नहीं maintain किया जा पाता है, and it will become difficult to maintain. It becomes a common standard in various institutions. So ये एक difficulty हो जाती है इसको बनाने के लिए. Then we come to the next point, that is how we reach the you can say the difficulty in maintaining certain aspects of curriculum, or lack of various other points such as difficulty how that becomes. क्या होता है कि जब टीचर कुछ समझाने का प्रयास करते हैं और उनका करिकुलम स्ट्रिक्ट रिजीम में होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है क्योंकि वो फिक्स्ड होता है, वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता है, so there is naturally there is certain amount of problem in that. Next we come to the that is a learner centered curriculum. Now, learner-centered curriculum is also known as LCC. It is a child-centered curriculum. It is more activity-based. तो ये activity-based से क्या अर्थ है? Activity-based means कि जो चीजें बच्चे करके सीखेंगे, जिन चीजों में बच्चों को इंटरेस्ट आए, जिसके द्वारा लर्निंग बेहतर हो, इनके एग्जाम्पल्स हैं लर्नर सेंटर्ड करिकुलम के चाइल्ड सेंटर्ड डिजाइन्स, एक्सपीरियंस सेंटर्ड डिजाइन्स, ह्यूमनिस्टिक डिजाइन्स. और इन सब का अर्थ क्या होता है? It simply means that a learner centered curriculum is relating to ये जो child centered design की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें आप बहुत सारे philosophers और educationists ऐसे हुए हैं जो child centered education पे उन्होंने बहुत ज्यादा importance दी है. Now what are they? Who are they rather? आपने रूजो का नाम अगर कभी सुना हो, तो Rousseau has been a very important philosopher who has talked about natural instincts of children. There has been John Dewey who has talked about the system of education, जहाँ पे बहुत तरह की कहना चाहिए pragmatic approach रखते हुए, जहाँ पे practical approach रखते हुए, utility को देखते हुए कि किस प्रकार की teaching होनी चाहिए. So we find various Pestalozzi and Froebel, और इनकी वजह से लर्निंग टीचिंग जो थी, आप कह सकते हैं इन्होंने एक्सपीरियंस सेंटर्ड में जॉन ड्यूई का नाम सबसे पहले आता है, which is relating to pragmatic approach. Then we come to humanistic designs over here, and humanistic design means जिसमें अगर आपने if you have heard of the self realization theory by Maslow. Now Maslow, Maslow, his name comes foremost when we talk about self-realization theory. जिसमें कि according to the experience, according to there's a cone of various you can say instincts, और इसके तहत उस cone में इन्होंने different Maslow की needs बताई हैं कि self realization की need कब आती है, किस level पे आती है, और इस level को accept करने के लिए it is a natural, simple, very necessary aspects उन्होंने इसको बताया है. Now regarding the merits of learner centered curriculum, पहली चीज ये मोटिवेशनल फोर्स होता है, क्योंकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उनके हित में या उनकी इंटरेस्ट एरिया को ध्यान में रखते हुए जो करिकुलम बना होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, ऑब्वियसली, बिकॉज children like changes. Children may be not wanting to study a particular subject at a particular time, और ये भी हो सकता है कि वो उनके उत्साह से उनके उस समय उनको अच्छा ना लग रहा हो, या सारे बच्चों के लिए वो हित में ना हो, तो वो अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम बनाया जाता है. Then we come to the demerits of learner centered curriculum. Now regarding this demerits, it simply means कि इसका सिर्फ एक सबसे अहम बात वो ये होती है कि कंप्लीट एजुकेशन इस करिकुलम पे बेस नहीं कर सकते, क्योंकि चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए, लर्नर को ध्यान में रखते हुए अगर करिकुलम बनेगा तो नेचुरली इट विल बी लिमिटेड टू द एरिया डिफाइंड बाय द लर्नर, लेकिन उसमें हम पूरी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली उस पर नहीं आधारित कर सकते. Then we talk about whether it is properly workable or not. तो नेचुरली थोड़े फ्लॉज होंगे, क्योंकि सेट पैटर्न नहीं है, उसकी पूर्वाधारित चीजें नहीं डिसाइडेड हैं. टाइम फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम कितना लगेगा नोबडी नोज.
So time is another important aspect. Then we come to the point on various other curriculums also, that is objective centered curriculum. ये ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड करिकुलम क्या है? एजुकेशन आप सभी जानते हैं कि इट इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, और ट्राइपोलर इसमें तीन पोल्स क्या हैं? सबसे पहला है टीचर, दूसरा है करिकुलम, और तीसरा है स्टूडेंट. तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज रिलेटिंग टू curriculum. So curriculum is an important aspect which we link to a tripolar process, and it is related to different aspects. Now we also come to different aspects when we discuss how we can bring about the changes in curriculum. लेकिन ये जो types of curriculum हैं, इसमें objective centered से मतलब है हम objective को ज्यादा importance देते हैं. तो कोरिलेटेड करिकुलम जो है वो एक ऐसा करिकुलम होता है जहां पे एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ा जाए. तो जो नॉलेज है वो अपने आप में कंप्लीट यूनिट या कंप्लीट होल या एक साथ जोड़ने की क्षमता रखते हुए करिकुलम की हम बात करते हैं, जिसमें करिकुलम लिंक किया जाता है एक से दूसरी ओर. तो इट इज नॉट इन बिट्स एंड पीसेस कि केवल एक विषय का या एक टॉपिक पढ़ लिया और दूसरे से रिलेटेड ना हो. इट हैज टू बी रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स. जैसे आप हिस्ट्री को आप रिलेट करते हैं मैथ्स से या ज्योग्राफी से, या दूसरे विषयों को लिंक करना, आर्ट एंड डांस एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर. सो ये जो करिकुलम है, ये जो एक्सपीरियंस जो हम तीसरा हम बात कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिंग टू यू कैन से different aspects of relating different aspects, such as experience centered curriculum. Experience centered curriculum means कि यहाँ पे जो अनुभव बच्चे को हो रहा है उस पर आधार करते हुए, उसको एक बेस बनाते हुए, एक मीनिंगफुल प्रक्रिया के दौरान प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हुए एक करिकुलम को हम जोड़ते हैं. सो दिस इज रिलेटिंग टू, इसका फायदा ये होता है कि हम पुरानी चीजों से जोड़ पाते हैं, लिंक कर पाते हैं, और इसको एक्सपीरियंस सेंटर्ड या अनुभव केंद्रित पाठचर्या कहते हैं. और जब हम एक दूसरे से लिंक करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो इनका जो संबंध है आपस में, उस संबंध की बात करते हैं. सारे विषयों को जोड़ना. जब हम ऑब्जेक्टिव से रिलेट करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड. Then we come to integrated curriculum. Now integrated curriculum means ये जो horizontal integration है to meet the needs of all the students, and vertical integration, that is common purpose of education, should be served. जब हम इसकी बात करते हैं, you come to the point that this horizontal curriculum and vertical integration both are related. एक करिकुलम को इंटीग्रेट करने का अर्थ केवल हॉरिजॉन्टल या केवल वर्टिकल नहीं है, बल्कि दोनों को आपस में लिंक करने का है. इसका अर्थ ये है कि जब हम समान प्रकार के विषयों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और करिकुलम उस पर आधारित करते हैं, या हम ऊपर से लेकर नीचे तक प्रीवियस नॉलेज से आज प्रेजेंट की नॉलेज पर, जो आगे जाके उस अनुभव, पीछे वाले अनुभवों को जोड़ता है, वो हम वर्टिकल में आते हैं. So vertical and horizontal, both kinds of curriculum are equally important. Next we come to vocational curriculum, and vocational curriculum means curriculum which is related to various points where people and supporting roles in professions such as engineering, accountancy, nursing, medicine, architecture or law. Vocational education is often provided by a highly specialized institute of technology या polytechnic. ये vocational curriculum क्या है? Integrated तो वो हो गया जब एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ते हैं. फिर vocational curriculum क्या है? Vocational curriculum prepares people and supports roles in professions such as engineering, accountancy. मतलब जो अलग-अलग विषय हैं जिनसे आप जोड़ सकते हैं, उनसे लिंक करने के लिए करिकुलम, पाठचर्या इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो आपस में जोड़े, एक दूसरे को लिंक करें. Next we come to mixed curriculum. What is mixed curriculum? Mixed curriculum means it is a curriculum
which is a fixed model designed to allow students of different abilities and learning styles to work towards the same learning objective through different means. ये एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखता हुआ मॉडल डिजाइन किया गया है जिसको कि करने वाले थे केथी ननले, और इन्होंने ये कहा कि हम किस प्रकार से इनको जोड़ सकते हैं. It is relating to different aspects of curriculum, which is relating to Kethi Nanle. He has talked about differentiating aspects and its flexible design, which is to work students at different abilities and learning styles. Then we come to aspects of liberal curriculum. Now, liberal curriculum means कि वो सिस्टम या वो कोर्स ऑफ एजुकेशन जो सूटेबल है फॉर कल्टिवेशन ऑफ अ फ्री ह्यूमन बीइंग. करिकुलम जो बांधे नहीं, जो लिबरल हो, जिसमें लिबर्टी की बात करी जाए, जिसमें फ्रीडम हो, इलास्टिसिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसको रोक करके एक बांधते हुए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ना जुड़े. सो दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट. Just a second. Yes, I was talking to you about different aspects of curriculum where we talked about task-centered curriculum. Now, task-centered curriculum क्या होता है? It means it is relating to different aspects of using 3H. And what are those 3H? Those 3Hs are head, heart, and hand. We have to take into account various resources available, that is the maturity level of students etc. कई बार क्या होता है कि एक्टिविटी या किस प्रकार की है, that is टास्क छोटा सा लिया गया है, बड़ा टास्क है, किस प्रकार की एक्टिविटी है, उसमें हमें अपने ब्रेन का यूज ज्यादा करना है या हमें कुछ क्रिएटिविटी का करना है या दिमाग से इस्तेमाल करना है या हमारी कॉग्निटिव स्किल्स ज्यादा आएंगी काम में. इट डिपेंड्स. So it is the maturity level of the students, the ability to perform, the ability to do in a better way. Then there is core curriculum. Now core curriculum means they are subjects as compulsory which are relating to you can say the other objectives such as which are optional. कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कोर होते हैं. आप सब जानते हैं, आपको जो सब्जेक्ट्स अभी पढ़ेंगे उसमें कुछ कोर विषय होंगे जो कंपलसरी होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो ऑप्शनल है. So we are talking about core curriculum, which means which one is compulsory and which one is optional. Next we come to the other types of curriculum, that is types of curriculum which are operational in schools, operating in schools. Now operating in school से मतलब है कि पहला curriculum वो है जो curriculum recommend किया जाता है. हम में से अगर आप बात करिए तो हम क्या चाहते हैं और हम क्या करते हैं और एक्चुअल में क्या होता है, ये तीन अलग अलग बातें हैं. उसी प्रकार से करिकुलम क्या रिकमेंड किया गया है, जो स्कॉलर्स ने जो प्रपोज किया है, जो बनाया गया है, और क्या वास्तविक रूप से रिटन फॉर्म में निकल कर आया, जो स्कूल्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, डिविजन्स के लिए सामने लाया गया, और कौन सा ऐसा करिकुलम है जिसको हम टॉट करिकुलम के अंतर्गत लेते हैं. That is relating to the what is the proportion between the taught curriculum. Now teachers जो उसको actual life में implement करते हैं विद्यालयों में, क्या deliver होता है क्लासरूम में, उसको कहा गया है that is relating to the taught curriculum. तो ये taught curriculum is acceptance to different, you can say, levels. Then we come to supported curriculum. Supported curriculum जो actual curriculum ना होते हुए करिकुलम को सहायता देता है. इट जस्ट हेल्प्स एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सपोर्ट सिस्टम की तरह से. जैसे आप मेडिसिन, व्यक्ति से कहा जाता है कि आप मेडिसिन तो तब लेते हैं जब आप बीमार होते हैं, लेकिन बहुत सारे विटामिन और आपको मिनरल्स एंड विटामिन लेने पड़ते हैं मेडिसिन के फॉर्म में अगर, तो वो आपका सपोर्ट सिस्टम है. ऐसा नहीं है कि वो यू डू नॉट टेक योर मे बी यू कैन से मिल्क नहीं लिया और आपने सब्जियां नहीं खाई और फल नहीं खाए और आपने कहा कि हमने ये डायरेक्टली लिया. तो इट इज अ सप्लीमेंटिंग इट, सपोर्टिंग इट. तो ये सपोर्ट करता हुआ करिकुलम जो है वो एक रिसोर्स के फॉर्म में टेक्स्ट बुक की तरह से कंप्यूटर्स और ऑडियो विजुअल मटीरियल के हिसाब से लिया जाता है. Then we come to those curriculum which is relating to the assessed curriculum, which is tested and evaluated.
जो करिकुलम असेस किया जा सके, जिस पे आप उसको टेस्ट कर सके, जिसका मूल्यांकन कर सके, उसको असेस्ड करिकुलम के तहत लिया जाता है। जो लर्नड करिकुलम है, वो जो स्टूडेंट्स एक्चुअली लर्न करते हैं, व्हाट इज बीइंग मेजर्ड इज कॉल्ड एज लर्नड करिकुलम. Or hidden curriculum is the unintended curriculum which is relating to, you can say, the curriculum which is relating to uh, actually not given in the written form, not given in the assessed form, but it is the form which is hidden, it is implied. एक्सप्रेसिवली नहीं कहा जाता कि ये रिटन फॉर्म में है या असेस्ड है या लर्न है या प्रिस्क्राइब्ड है, बट इट इज हिडन. हिडन मीन्स कि जैसे कि आप विद्यालय रोज आना है, sorry not now these days, but all the same क्लासरूम में जाना है, उसमें नॉर्म्स फॉलो करने हैं, होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करना है, टीचर्स को रिस्पेक्ट देनी. दिस इज नॉट रिटन, दिस इज implied, दिस इज हिडन करिकुलम, इट इज unintended, but yet it is a part of the curriculum, and here also the students learn during this process. तो ये भी एक तरह का करिकुलम माना गया है. Now, ये जो I just wanted to discuss with you, ये जो ऑपरेशनल हम बात कर रहे हैं विद्यालयों की, it is basically relating to बहुत सारी चीजें होती है कि जिसमें जो आपके स्कॉलर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, जो अथॉरिटीज होती हैं, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ करिकुलम को असेस करके चलती हैं कि हम किस करिकुलम को लेंगे. तो उसमें वो रिकमेंड करते हैं कि हम ये रिकमेंड करा जाता है. लेकिन जितनी चीजें रिकमेंड की जाती हैं, ये आवश्यक नहीं है कि वो सारी की सारी हमारे पर्पस में हेल्पफुल रहेंगी. नाउ इन दिस केस वी फाइंड दैट ये रिकमेंडेड है, मगर वो हर चीज ली नहीं गई. नेक्स्ट जो रिटर्न की बात की जाती है, वो विद्यालय उसको लिखित फॉर्म में, लिखित प्रकार से विद्यालय, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन उसको अपना लेती है. उसके बाद में अगला आता है आपका टॉट करिकुलम. टॉट मीन्स जो टीचर इम्प्लीमेंट करती हैं, डिलीवर करती हैं क्लासरूम में, विद्यालय में, उसको लेके टॉट करिकुलम कहा जाता है, जो एक्चुअल रूप में पढ़ाया जा रहा है. और जो जहां तक सपोर्टेड करिकुलम की बात की जाती है, बहुत सारे करिकुलम भले ही वो लिखित भी नहीं है, रिकमेंडेड भी नहीं है, और वो पढ़ाए भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन यदि हम उसमें सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो केवल क्लासेस के करिकुलम पाठ्यक्रम के नहीं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक्स हैं, लाइब्रेरी में बुक्स हैं, जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जो आप अपने इंटरनेट से फैसिलिटीज से लेते हैं, जो कंप्यूटर से हेल्प मिलती है, all that is also a part of the supported curriculum, which is used as supported curriculum. Then we come to this one, assessed curriculum. Here simply means कि ये assess किया जा चुका है, ये tested है, ये evaluated है, और इसलिए इसको schools में operation के लिए माना जाता है या साथ में लिया जाता है. Then लेकिन कई इन सब चीजों के बावजूद जो बच्चे एक्चुअली लर्न करते हैं, जिसको कि आप जिसको मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, दैट इज लर्न्ड करिकुलम. Then this hidden curriculum, as I told you, it is something which is not intended, not specified, yet it is very much in the part of the syllabus. And in the coming few classes, I will be surely taking up with you hidden curriculum and curriculum in detail, because this is you can say many a times it is confusing for the students, and I would like you to get it clear, the concept of this. And various types of curriculum shall also be conducted in many classes to come. Then now I would like to tell you that curriculum has many several benefits, such as achievement of educational aims, and the utility it provides, and the suitability for teachers, and the selection of the suitable methods, the reflection of trends in education. But at the same time, there are various kinds of curriculum, and each curriculum has different you can say attainability and different purpose. और हर चीज को आइडियल हम नहीं मान सकते कि हमने कुछ करिकुलम सोचा, बनाया गया, लेकिन विद्यालय में आप एज अ टीचर उसको कितना फुलफिल करा पाते हैं, that is much more important, students, than what we just read in the books. So since you are being trained for teachers to be future teachers of our system,
of our country, I'm sure you would like to complete the curriculum system, bring it into force in a much more positive manner, and see that it is completed. Hence, you can say that curriculum is an important instrument or means to achieve education at all levels of school and college. And so the curriculum prepares an individual with the knowledge to be successful, confident, and responsible citizens. जो हमारा करिकुलम है, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो लर्न हो, चाहे वो टॉट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का करिकुलम हो, पाठचर्या हो, वो एक हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर बालक को आगे के लिए प्रिपेयर करती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है, ज्ञान देती है, ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, कॉन्फिडेंट हो सके और एक बेहतर नागरिक के रूप में सामने आ सके. So for this class, students, this is all that we have today. But I would surely like you all to keep in mind these various aspects of curriculum, so that when we proceed in our next class, you can easily go through these things. The aims, the meaning, the definitions, and the types of curriculum. So dear students, till next class, thank you so much for listening patiently, and I welcome you again for these classes to be. Thank you, students. Thank you all.